Dear viewers and listeners, welcome to yet another episode of Abhyuday's podcast, Voices of Compassion, where we delve into the inspiring stories and draw an inspiration from them. I am Lieutenant Commander Vikas Girisagar from Indian Navy. I am currently associated with IIT Bombay as I am pursuing my masters over here and I represent the student body. Today we have with us our exceptional guest, that is Mr. Praveen Shinde. Very warm welcome, Mr. Praveen, over here. नमस्कार. मी मुंबईकर. जय महाराष्ट्र. नमस्कार. Namaste, Praveen. So before we move ahead and start with various activities, knowing and drawing inspiration from Praveen, we just want to tell you what the student body is about, what Abhyuday is basically about. Well, this is a student body of IIT Bombay, which is mainly focusing on the social causes. Mind you, this is the Asia's largest student-run body, which focuses on social causes. From campaigns to cleanship drives to action plan competitions, you name it, they have it. Well, there are various campaigns which this institute or student-run body organizes, like they have the collaboration with Robin Hood Army for food distribution. Apart from that, they also carry out career counseling campaigns. And apart from this, there are cleanship drives which are being organized by Abhyuday. Cleanship drives ranging from beach to land to lakes, you name it, they do it. The latest milestone which Abhyuday has achieved is cleanship of garbage of 3 tons from Powai Lake. So 3 tons is actually a lot for a small student body. And coming down to competitions, Action Plan is one of the major competition which this body organizes. It is the India's biggest social entrepreneurship competition. Well, the list will go on with respect to social causes and the Abhyuday. But let's come down to our guest of honor today, that is Mr. Praveen Shinde. Praveen, we have watched a lot about you, we have seen a lot about you, we have heard a lot about you. But today, we are actually honored that we have you with us here live. Let's know a little about your personal journey. Can you please share a little bit about your background and what led to what you are today? Hi Akash, and at this moment I am coming over here. I am so happy, and in my life journey I am started by from born. मुझे जब मैं छोटा था तभी मुझे पोलियो हुआ था, एंड उस टाइम पे मैं 1.5 साल का था. तो एंड मेरे पेरेंट्स जो थे उनको अवेयरनेस नहीं थी कि वैक्सीनेशन क्या होता है. लेकिन चलो इट्स ओके, नो इशू कि वैक्सीनेशन न होने के कारण वो पोलियो मुझे हुआ. एंड उसके बाद मेरे जर्नी स्टार्ट हुई. एक्चुअल जैसे बोला जाता है ना कि डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है, वहाँ से मुझे स्टार्ट हुआ. लेकिन मुझे डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पता नहीं था उस टाइम पे कि क्या एग्जैक्टली सिचुएशन आने वाली है. स्कूल में जाता था, बच्चे लोग जो मेरे फ्रेंड्स थे वो लोग प्लेग्राउंड पे क्रिकेट खेलते थे, मैचेस खेलते थे. इट्स ओके, मैं वहीं बैठ के देखते रहता था. वो लोग मतलब ग्राउंड पे खेलते थे, बट मैं विजुअली अंदर खेलता था. लाइक मुझे पता था कि मेरा फ्रेंड अभी गया है, वो एटलीस्ट 50 रन्स करके आएगा. मतलब मुझे मतलब वो स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है वो मेरी मैच यहाँ पे चालू रहती थी. इट्स ओके, नो इशू. मतलब जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी उसको मैं मतलब एबिलिटी में कन्वर्ट करते गया वो टाइम पे स्कूल लाइफ में. एंड मेरे हार्ड जो भी मैं काम, मतलब अभी जोमेटो में काम कर रहा हूँ, लेकिन ये जो लाइफ की जर्नी है इसमें मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे सपोर्ट किया. एक कॉमन थिंग ये भी हो सकती है, मतलब मेरी ओर से, कि अगर कोई डिसेबल पर्सन 10th तक एजुकेशन कंप्लीट कर रहा है तो उसके पीछे उनके पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं. ओके, आई एम अ 90% डिसेबल्ड. बिल्कुल. ओके, आई एम अ 90% डिसेबल्ड. तो मुझे मेरे मम्मी एंड फादर 12th तक मुझे उठा के कॉलेज तक लेकर गए. तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड मैं SY BCom तक मेरी एजुकेशन कंप्लीट किया. तो उसके बाद मैंने बहुत MNC कंपनी में जॉब भी किया. ओके, बट कोविड के बाद हर एक कंपनी में जो एंटरप्रेन्योर थे उनको एम्प्लॉयज़ ऐसे चाहिए थे जो मल्टीटास्क करें, और मैं तो मल्टीटास्क नहीं कर सकता. तो उन्होंने कहा कि आप रेस्ट लीजिए.
तो 4 साल ऐसे ही घर पे था। तो उसके बाद काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई फैमिली में, क्योंकि फंड ही मेरे पास नहीं था, तो काफ़ी लोन्स हो गए थे। तो ऐसे करके मैंने बाद में सोचा कि मैं अभी करूँ क्या। मेरे पास एबिलिटी है कि मैं कुछ करूँ, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे थे, तो मैं काफ़ी हतबल हो गया था वो टाइम पे। बट नो इशू। मुझे जैसे जोमेटो ने जॉब मिला एंड मैं स्टार्टअप किया। और जोमेटो में भी जैसे बोला जाता है कि जो ग्राउंड ट्रैफिक होता है, मुंबई का ग्राउंड ट्रैफिक, मुंबई में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रोड पे जो होता है, उसको फेस करना मेरे लिए काफ़ी बड़ी एक चैलेंज था कि मैं कैसे उसको मैं पार कर पाऊँगा, बिकॉज़ मेरी व्हीकल छोटी है और जो 4 व्हीलर्स या फिर बड़ी जो बसेस होती है, तो उनको मुझे फेस करके उनसे निकलना है, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज थी। बट इट्स ओके, मैंने सोचा कि मुझे करना ही है। अगर और उसके पहले मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक ही बात बताई थी कि अगर तेरे सामने अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो उस क्वेश्चन के बारे में मत सोचना, उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना, क्योंकि हेड एंड टेल्स दोनों होते हैं। तो आप हमेशा हेड के बारे में सोचते रहेंगे तो टेल्स नहीं मिल पाओ, मतलब उसको सर्च नहीं कर पाओगे। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो मेरे पेरेंट्स ने जैसे बताया था, मैं तो हमेशा मेरे सामने सवाल आते थे, मैं उसको सवाल क्वेश्चन नहीं सोच रहा, मैं उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचता था। एंड सॉल्यूशन मुझे मिलता था, ऑन टाइम मिलता था, एंड वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं उसके पीछे पड़ा रहता था। तो ये है मेरी छोटी सी लाइफ स्टोरी, और मैं आज अभी तक आपके सामने हूँ। एंड बहुत सारे डिसेबल पर्सन ऐसे हैं जिनको बेड से ऐसे उठा के रखना पड़ता है। आई एम सो लकी कि मैं आपके साथ बैठा हूँ एंड आपके साथ बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली प्रवीण, हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप जैसे लोगों को हम होस्ट कर रहे हैं। यू आर डेफिनेटली अ वेरी स्पेशली एबल्ड पर्सन, बिकॉज रीचिंग दिस स्टेज आफ्टर अ रिमार्केबल जर्नी इज़ नो लेस। प्रवीण, आप एक चीज़ हमें बता सकते हो, कौन सा वो पॉइंट था जो आपके लाइफ में आप जोमेटो डिलीवरी पर्सन बनने के बारे में सोचा आपने? तो इस पॉइंट, टर्निंग पॉइंट कौन सा था जहाँ पे आपने लाइफ का फेस चेंज कर दिया? वो पॉइंट ऐसा था ना कि उस टाइम पे एक्चुअली मेरे लाइफ में मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, मेरी मम्मी है। बिफोर 2 मंथ्स मेरे पापा एक्सपायर हो गए। तो जैसे उसके पहले मेरे पापा का पैरालिस हो गया था कोविड के बाद। तो उस टाइम पे घर में बहुत कुछ, मतलब पैसे न होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। ओके, तो मेरे पापा ने एक ही बात मुझे उस टाइम पे बोली थी कि तुझे नर्वस नहीं होना है और तुझे बाहर जाना है, बाहर की दुनिया देखनी है, अपने फैमिली के लिए कुछ करना है। तो मैंने वो बात कंज्यूम की। एंड जब मैं बहुत MNC कंपनी में गया, इंटरव्यू दी, लेकिन उस टाइम पे मुझे रिस्पॉन्स वहाँ से अच्छा नहीं मिला। लेकिन जोमेटो की ओर से जब मुझे जॉब मिला तो मुझे इतना अच्छा लगा ना कि सबसे पहली बात, मैं तो अर्निंग तो मेरा होगा ही, मतलब मेरे सैलरी मुझे मिलेगी। एंड दूसरी बात ये भी होगी कि मुझे दुनिया घूमने मिलेगी, क्योंकि अगर मैं 10 पर्सन से मिल रहा हूँ तो 10 पर्सन से मुझे कम्युनिकेशन पावर मिल रही है कि उनसे कैसी बात करनी है। और यहाँ पे जैसे मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे स्टेयर केस है, या फिर वहाँ पे मैं नहीं जा पा रहा हूँ, या फिर कोई रोड ऐसे होते तो डिफ़िकल्टीज़ है। जो डिफ़िकल्टीज जो पार्ट है ना, वो मुझे, मैं उसको मैं जैसे देख रहा, मतलब ये मैं बोलना चाहता हूँ कि उसको मैं फील कर रहा हूँ कि डिफ़िकल्टीज एग्जैक्टली क्या होती हैं। तो उस बारे में ना, उस टाइम पे मैं सोचा, मैंने फर्स्ट वीक तो मैं हार मान चुका था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि रोड कंडीशन ख़राब था एंड ट्रैफिक था। तो बाद में फिर से मैंने उसके बारे में सोचा। रात को 3-4 बजे तक मैं ईच एंड एवरी नाइट मैं सोता नहीं था। मेरे माइंड में वही थॉट चलते रहते हैं कि मुझे कुछ करना है। और मैं जैसे 1 वीक के बाद मेरी जो फर्स्ट सैलरी मैंने अचीव की वो 7,000 मेरी वीकली सैलरी थी। तो उसके बाद तो मैंने ये सोचा कि अभी मुझे करना ही है।
और जैसे मुझे 2-3 दिन हो गए तो मुझे उसमें अच्छा लगने लग गया। क्या क्या आपका रिएक्शन था जब आपका फर्स्ट सैलरी एक हफ्ते के बाद डिस्पाइट सो मच डिफिकल्टीज आपको मिला? तो क्या उस मोमेंट पे क्या कैसे लग रहा था? उस मोमेंट पे मुझे तो ऐसा लगा कि मैं जैसे अभी हाल ही में चंद्रयान जैसे चांद पे पहुंचा है, जैसे उस टाइम पे चंद्रयान के पहले मैं चांद पे पहुंच चुका था। प्रवीण, जैसे आपने कहा एक कोविड के टाइम में स्पेशली पीपल वेयर लुकिंग फॉर मल्टीटास्किंग, है ना, मल्टीटास्किंग लोगों को। यस। तब एक चीज़ डेफिनेटली हुआ होगा, आपको कहीं जगहों से रिजेक्शंस मिले होंगे कंटिन्यूअसली, राइट? तो आपका मोरल ऑब्वियसली तब डाउन हुआ होगा, ऐसे बहुत सारे मेंटल इश्यूज आपने फेस किया होगा। डिस्पाइट ऑल दैट आपने हार नहीं माना लाइफ में, राइट? आप जिस स्टेज पे अभी हो वो बहुत कुछ बोलता है आपके बारे में। लेकिन हमें हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए क्या आप ये बता सकते हो कि इस दौरान कैसे आपने अपना डिटर्मिनेशन मेंटेन करके रखा? वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी, एक्चुअली मैं जब एक मेरा जब मैं ऑर्डर में लेकर जा रहा था उस टाइम पे मुझे एक पर्सन मिले जो काफ़ी एजुकेटेड थे एंड वो वसंत ओसिस का मेरा ऑर्डर था, मरोल वसंत ओसिस। ओके, तो रास्ते में हम जा रहे थे और उनका कार मेरे सामने खड़ा हो गया सिग्नल पे और उन्होंने, सर ने मुझे कहा, हैट्स ऑफ डियर, आपने तो दुनिया को जीना सिखा दिया। लेकिन मैंने उनको थैंक यू सो मच कहा एंड उनको एक ही रिप्लाई किया, सर दुनिया को मैंने नहीं जीना सिखाया, दुनिया ने मुझे जीना सिखाया। चलो, इट इज़ वेरी इंस्पिरेशनल। बिकॉज ऑफ दैट अगर मैं दुनिया से कनेक्टेड नहीं हूँ तो मैं आई एम ज़ीरो एंड एज वेल एज अगर मुझे कोई सिचुएशन में अगर कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसका सॉल्यूशन अगर मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ तो आई एम ज़ीरो। और मेरी जो एम्स हैं, मेरी जो ड्रीम्स हैं, उसको अगर मैं इसी लाइफ में कंप्लीट न कर पाऊँ तो मैं ज़ीरो। और सेकंड थिंग ये भी है कि एक सेंटेंस है कि जैसे नेवर गिव अप। ओके, तो नेवर गिव अप ये मतलब 2 सेंटेंस का है, लेकिन मैंने थोड़ा सा एडिशनल किया है माई सेल्फ, नेवर गिव अप टिल लास्ट मोमेंट ऑन अर्थ। तो मैं वही एक सेंटेंस लेके मेरी लाइफ की जर्नी अभी तक मैंने की कि हार नहीं माननी है। हाँ, मुझे पता है कि इसमें मुझे लॉस होने वाला है, मैं इसमें रॉन्ग हूँ, रॉन्ग को भी अगर मैं राइट कर सकता हूँ सो आई एम एबल। यस, डेफिनेटली। तो मेरी सोच वो थी उस टाइम पे कि मुझे पता है कि ये रास्ता वहाँ नहीं जाने वाला है, लेकिन उस रास्ते में से भी कुछ शॉर्टकट निकालना है मुझे एंड मुझे मेरा डेस्टिनेशन रीच करना है। डेफिनेटली। yes. प्रवीण, बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे लोगों से बात करते हैं। प्रवीण, काफ़ी लोग आपको इस स्टेज में ना, पीपल लुक अप टू यू, आपको देखते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो है आपको देखते हैं, इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं आपसे। तो देर आर मेनी अदर्स ऑल्सो हु मे नॉट बी स्पेशली एबल्ड, हु ऑल्सो स्टिल ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम योर लाइफ जर्नी, है ना? तो हम क्या ये जान सकते हैं कि दैट इज व्हाट इज दैट वन की लेसन that you have learned and you would like to share with our viewers या listeners? एक्चुअली मतलब मैं उनके लिए एक ही मेरे ओर से मैसेज होगा कि आपके लाइफ में जैसे कहा जाता है कि अपने लाइफ में 3 स्टेजेस होते हैं। एक अपना चिल्ड्रन होता है, देन अब जैसे 10th के बाद एक दूसरा लाइफ स्टार्ट होता है, देन अपना फैमिली लाइफ स्टार्ट होता है और एंड में अपना ओल्ड एज स्टार्ट होता है। ओके, तो एज़ पर माय नॉलेज आपको अगर स्टार्टअप करना है तो आप कौन से भी स्टेज में, कौन से भी सेकंड पर मिनट अभी के अभी आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको एक जैसे कैलेंडर में देखना है या फिर सोचना है कि हाँ ये टाइम अच्छा है, मैं उस दिन स्टार्ट करना है। अगर आप स्टार्ट करना है तो अभी स्टार्ट करो और सोचो कि मैं अभी से ये मेरा मोटिव है और इतने टाइम में मुझे वो टारगेट अचीव करना है। अगर आप वो डिफ़िकल्टीज़ को अगर ये सोचोगे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मेरे से नहीं होगा, ये टारगेट बहुत बड़ा है, तो नहीं होगा। अगर आप वो टारगेट को अगर छोटा समझोगे और आपका विनिंग अमाउंट अगर बड़ा रहेगा तो डेफिनेटली होगा। आपको उसको उल्टा करना है, देन यू विल अचीव योर टारगेट्स। डेफिनेटली इंस्पायरिंग। प्रवीण, हमने आपके बारे में अभी तक काफ़ी जाना,
आपके सोच विचार राय के बारे में काफ़ी जाना। हमारे व्यूअर्स एंड लिसनर्स डेफिनेटली इंस्पायर्ड रहेंगे। लेट अस कम डाउन टू अ बिगर सोसाइटी नाउ, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ब्रॉडर इशू? एक ब्रॉडर इशू है विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या राय है? इसके बारे में एक ही मेरा मतलब एक विचार नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है कि एज पर कैंडिडेट एजुकेशन, एज पर कैंडिडेट एबिलिटी, आप उसको उस रेशियो को एनालाइज कीजिए। जो भी एम्प्लॉयर है या फिर जो बिजनेसमैन है, तो उन्होंने ना वो एक डेटाबेस में देखना चाहिए कि अगर मैं मेरे पास एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन मैं देना चाहता हूँ किसी डिसेबल पर्सन को, ओके, तो अगर वो उसके लिए कैपेबल है तो डेफिनेटली उसको मिलना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 10 फ्लोर्स हैं जहाँ पे प्लेटफॉर्म बने हैं, डोमेस्टिक है। तो वहाँ पे जितने हेल्प डेस्क हैं वहाँ पे 12th पास जितने भी हैं इन मुंबई कैंडिडेट्स, उनको वहाँ पे जॉब मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट ये बोलता है कि एनी फर्म 5% आपको जो मैन पावर है वो डिसेबल PWD कैंडिडेट को देना है, ओके। बट एज पर डेटा वहाँ पे इन 100 में 5% नहीं होता। तो उसके लिए बैकअप के लिए सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए एंड गवर्नमेंट को एक सेपरेटली एक जैसे विभाग बनाना चाहिए कि वहाँ पे हम जो भी कैंडिडेट आए, तो अगर वो बोलता है कि ये मेरे कंपनी में मैं गया था लेकिन वहाँ पे ऐसे ऐसे कैंडिडेट नहीं है, तो एक कोई एक्शन लेने वाला होना चाहिए। ताकि क्या होता है कि ज़ोमैटो का जो जॉब मैं अभी कर रहा हूँ, ओके, ये ज़ोमैटो का जॉब मैं, जैसे मैंने कहा कि दुनिया ने मुझे जीना सिखा दिया, तो ये ज़ोमैटो का जॉब मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना पड़ रहा है, ओके। ऐसा सबको लगता है, ओके, मतलब जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं या फिर वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। लेकिन उनको ये पता नहीं कि ज़ोमैटो जॉब में मैं कितना हैप्पी हूँ। बिल्कुल। काम कौन सा भी हो, मतलब बड़े लेवल का हो, छोटे लेवल का हो, या फिर मैं एसी में बैठ के काम कर रहा हूँ, काम अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे आपने कहा कि फूड डिलीवरी अर्निंग एक अपने जगह है, लेकिन आपको दुनिया घूमने का मौका भी मिल रहा है इसके साथ। एंड अभी मेरे फैमिली बहुत हैप्पी है कि मैं अर्न कर रहा हूँ और मिनिमम टाइम मैक्सिमम वेजेस। यस, तो मैं वही सोच के मैं अभी ज़ोमैटो में वर्क कर रहा हूँ। एज वेल एज मेरा ज़ोमैटो का जो जर्नी चल रहा है वो थोड़ा सा मैं अभी और जानकारी में मेरे बारे में सेकंड प्रोफाइल में बता रहा हूँ। अभी मैं मॉर्निंग 7 to 4 PM मैं एयरपोर्ट में इन अ कैफ़े एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ। मिट्टी कैफ़े, या मिट्टी कैफ़े वहाँ का नाम है, ओके। एंड वहाँ पे मिस अलीना आलम फाउंडर हैं वहाँ के, और मेरे कैफ़े में सभी डिसेबल्ड पर्सन काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई अब्रॉड जा रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, तो प्लेटफॉर्म नंबर 6 टर्मिनल 2 मेरा मिट्टी कैफ़े, मेरे कैफ़े का नाम है। आप आइए, मैं डेफिनेटली आपका स्वागत करूँगा। एंड मेरा जो जर्नी था ये ज़ोमैटो का, वो मेरा स्टार्टअप जो हुआ, तो मैं कैमरा के सामने मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ज़ोमैटो कंपनी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। एंड मेरी जो NGO है स्नेह ज्योत जो दहीसर में है, तो उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि क्या होता है ना कि इस मुंबई में काफ़ी डोनेटर्स अवेलेबल हैं। डोनेशन अगर किसी पर्सन को मिलता है तो डोनेशन जो वर्ड है ना, वो हेल्पिंग पर्सन को ना डिसेबल कर देता है। इट्स माय थिंकिंग, क्योंकि डोनेशन नहीं होता, डोनेशन को वर्ड चेंज करके सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके माइंडसेट ये हो जाता है कि मुझे कोई डोनेशन मिलेगा तब मेरा ये काम होगा। लेकिन अगर कोई उसको सपोर्ट करता है कि आप डोनेशन अगर आपका 1 लाख है तो मैं आपको 90,000 देता हूँ, 10,000 आप कंट्रीब्यूट करो एंड आपका बिजनेस स्टार्ट करो, आपकी लाइफ स्टार्ट करो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि
कोई भी पर्सन और डिसेबल्ड हो या फिर कोई भी नीडी पीपल हो, उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसको राइज करने के लिए, मीन्स उसको अपने लाइफ को स्टार्ट करने के लिए उसको उसकी मेंटिलिटी ये नहीं करनी है कि सर आने वाले 6 महीने में आपको इतने हम सपोर्ट का डोनेशन देंगे, फिर 6 महीने में देंगे, फिर 6 महीने में देंगे। नहीं, आपको डोनेशन नहीं देंगे। ओके, या एज वेल एज जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, जैसे पेंशन प्लान है, ओके तो मेरी मतलब मेरी सोच एक ही है कि पेंशन प्लान मत दो गवर्नमेंट को। मेरी ये रिक्वेस्ट है, पेंशन प्लान के देने से अच्छा उनको एक अच्छा जॉब दो, अपॉर्चुनिटी दो। अगर पर्सन मंथली 15,000 से ज़्यादा अर्न कर रहा है तो उसको पेंशन प्लान की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सब्सिडी हो उसको ज़रूरत नहीं है। बहुत सही सोच है आपका। अगर वो जब पर्सन कोई इनकम सोर्स नहीं होता उसी टाइम पे कहीं ना कहीं जाता है कि मुझे कोई डोनेशन करे। अगर मेरे पास इनकम सोर्स है तो मैं सोसाइटी जो, जैसे अभी सोसाइटी की जो हाईस्ट मतलब हाई क्लास पीपल्स हैं तो वो डोनेशन देते हैं। ओके, अगर मुझे अच्छा जॉब मिल रहा है, मेरी फैमिली में कोई इशू नहीं, कुछ नहीं, तो मैं किसी को हेल्प करूं, मैं किसी को सपोर्ट करूं। मैं उस लेवल पे पहुंचना चाहता हूं कि मैं किसी को हेल्प करूं। वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग प्रवीण। प्रवीण, लेट अस रिपीट योर प्लेस विच यू सेड इन एयरपोर्ट। कौन सा जगह कहा था आपने? टर्मिनल 2? यस, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। या मेरे कैफ़े का नाम है मिट्टी कैफ़े, टर्मिनल 2, प्लेटफॉर्म नंबर 6। तो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, यू आर ऑल मोस्ट वेलकम बाय प्रवीण टू मिट्टी कैफे, टर्मिनल 2, प्लेटफॉर्म 6। जब भी आप एयरपोर्ट जाओगे डेफिनेटली प्लीज विजिट ओवर देयर, ही विल बी मोर देन हैप्पी टू वेलकम यू ऑल। यस प्रवीण, लेट्स कम डाउन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा हम जानने की कोशिश करेंगे, आपको क्या लगता है ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेसेस आज के डेट में जो है तो वो कैसे वर्कफोर्स को, लाइक डिफरेंटली एबल्ड पीपल को कैसे अपने वर्कफोर्स में इंक्लूड कर सकते हैं, सो दैट दे ऑल्सो हैव देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, उनका खुद का रिक्वायरमेंट भी रहता है, एट द सेम टाइम आपको भी इंक्लूड करके वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं एज अ सस्टेनेबल सोसाइटी? बहुत सेंसिबल आपका क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ दैट एम्प्लॉयमेंट्स इज़ वे ऑफ अर्निंग। ओके, एंड मैं तो सबसे पहले थैंक्स बोलूँगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो जो भी बिजनेसमैन्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि कोई PWD कैंडिडेट हमारे बिज़नेस में आए तो बहुत अच्छी बात है। उनको, जैसे मैंने अभी मेरे कन्वर्सेशन में कहा कि अगर उनके पास कोई बायोडाटा आ रहा है, रिज्यूमे आ रहे हैं, तो उसमें उसकी परसेंटेज देखनी है फर्स्ट। वो ट्रैवल कर रहा है तो कैसे कर रहा है। अगर ट्रैवलिंग में उसको कुछ हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली वहाँ से, कंपनी से उनको हेल्प होनी चाहिए। एंड जो टाइम स्लॉट्स होते हैं, जैसे शिफ्ट्स होते हैं मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट, अगर 24/7 है तो रोटेशनल शिफ्ट होगी। तो उसमें उनको जो कंफर्टेबल है वो शिफ्ट मिलनी चाहिए। ओके, एंड उनकी जो एजुकेशन पार्ट जो है, अगर मेरे कैंडिडेट के पास अगर एजुकेशन जो होता है वो फर्स्ट सर्टिफिकेट पे होता है, बट उनके पास अगर एबिलिटी है कि मैं एक्सेल में पूरा काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक्सेल का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ओके, तो 1 वीक उनको एक एडिशनल दिया जाए कि 1 वीक आप हमारे यहाँ आओ, आप हमारे साथ काम करो, एक्सेल के बारे में आप जो आपके पास नॉलेज है हमें बताओ। तो एक टाइम स्लॉट उनको देना चाहिए, एक प्रिविलेज एक्सटेंड होना चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है जो जॉब देना चाहता है, उनको अदर जो कैंडिडेट हैं उनसे जो डेटा मतलब जो एनालाइज करके मिलने वाला है, आई एम श्योर कि उससे भी 100% मोर क्वालिफाइड डेटा उनको मेरे कैंडिडेट से मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि दे आर स्पेशली एबल्ड एंड दे विल डेफिनेटली वर्क स्पेशल फॉर दैट। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण, आपका स्टोरी डेफिनेटली बहुत इंस्पायरिंग था, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सो वील नाउ कम टू द एंड ऑफ द एपिसोड। तो बिफोर दैट, इज देयर एनी सिंगल पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को, लिजनर्स को, एंड स्पेशली अगर आपका टारगेट ऑडियंस वो हो जो अपने खुद के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो,
एनी पर्टिकुलर पीस ऑफ एडवाइस आप देना चाहते हो? एडवाइस तो मैं डेफिनेटली अभी तक तो काफ़ी एडवाइसेस लर्निंग लेसन्स आपके थ्रू आउट द जर्नी थे. योर जर्नी हैज़ बीन इंस्पिरेशन, बट स्टिल इफ देर इज एनी पर्टिकुलर पीस ऑफ एडवाइस, अगर आप कुछ बताना चाहते हो आपके व्यूअर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए एंड स्पेशली टारगेटेड टू दोज हु आर फेसिंग देयर ओन चैलेंजेस. यस यस एक्चुअली मेरी ओर से मतलब मैं एक सजेशन मेरी ओर से होगा कि जो भी इन मुंबई एंड मुंबई में जो पवई हैं ये काफ़ी मतलब वो जो पब्लिसिटी मीन्स काफ़ी लोग जानते हैं. आईआईटी सिर्फ आईआईटी ये 3 जो स्मॉल वर्ड्स है, अगर कोई कहीं पर भी मुंबई में बोलता है तो आईआईटी पवई एकदम मतलब रिसेंटली निकल जाता है. आईआईटी पवई, अगर मैं आईआईटी बोलूँगा तो सामने वाला रिसेंटली बोल देगा कि आईआईटी पवई, और किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आईआईटी पवई कहाँ पर है. एक सिंपल है. तो मेरी ओर से मैं एक ही बोलूँगा कि आप अगर किसी को डोनेट करना चाहते हो तो आप एक माइंडसेट बना सकते हो कि मुझे मंथली एक सिंगल रुपीज़ डोनेट करना है. इट्स माई थॉट, मैं एक्सप्लेन करूँगा इसके बारे में. एक सिंगल रुपीज़ मुझे मेरे अर्निंग में 1 रुपीज़ मुझे किसी पर्सन को डोनेट करना है इन अ मंथली. ओके, नॉट अ बिग अमाउंट. ओके, अगर 1 रुपीज़ एक एम्प्लॉइज़ अगर किसी एक सिंगल पर्सन को डोनेट कर रहा है, तो अगर एक कंपनी, एक मल्टीनेशनल कंपनी 1000 पर्सन्स एम्प्लॉइज़ वहाँ काम कर रहा है, 1000 पर्सन्स सिंगल रुपीज़ अगर एक पर्सन को दे रहे हैं तो उसको कंट्रीब्यूशन आएगा 1000. लेकिन जो पर्सन 1 रुपया दे रहा है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो पर्सन को वो कंट्रीब्यूशन मिलेगा उसके लिए बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल जी. तो अगर मैं किसी को 1 रुपीज़ दे रहा हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि चलो 1 रुपया चल जाने दो, बट वही कंट्रीब्यूशन अगर पूरे एमएनसी कंपनी ने एक ही में किया तो वो हमारे जो एक कैंडिडेट हैं उनको एक बोल सकते हैं ना कि उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा. अमाउंट इज स्मॉल बट हैप्पीनेस इज मोर. डेफिनेटली दिस विल बी अ बिग इंस्पिरेशन. हम सारे इस बात का ध्यान रखेंगे जी. थैंक यू सो मच प्रवीण हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इन येट अनदर एपिसोड ऑफ अभ्युदय's पॉडकास्ट वॉइसेस ऑफ कंपैशन. और थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू लिसनर्स फॉर स्टेइंग विथ अस इन द टुडेज पॉडकास्ट विच इज navigating life challenges from disability to self dependency. थैंक यू सो मच. थैंक यू आकाश एंड ऑल टीम. एंड जैसे कि अभी कैमरा के सामने आकाश जी हैं, मैं हूँ, बट मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कैमरा के पीछे जो है वो काफ़ी दूर है यहाँ पे, लेकिन जो पॉडकास्ट अभी जो बनाया गया है वो ग्राउंड लेवल से लेके आकाश जी तक जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर हैं उनके लिए मैं थैंक यू सो मच मेरी ओर से पर्सनली कहूँगा, मेरे जोमेटो की टीम की ओर से. एंड थैंक यू सो मच अभ्युदय एंड IIT बॉम्बे, एंड आई एम कमिंग ओवर हियर. इट्स माय ऑनर. थैंक यू सो मच. Thank you. जय महाराष्ट्र. Thank you.